Now we will do the remaining three proofs. Fourth proof basically ये कहता है that if we take two imaginary numbers और उसके sum का हम conjugate लें तो वो basically equal होगा उन्हीं दो imaginary number के conjugates के sum से. Basically अगर हम उनको separately भी sum करें so they will give us the same answer. Let's say हमारे पास पहला imaginary number आता है a plus iota b और दूसरा imaginary number जो हम लेते हैं that is c plus iota d. इन दोनों के हम conjugates ले लेते हैं. So we have z1 conjugate that is a minus iota b and z2 conjugate that is c minus iota d. The first thing we need to do is हम z1 plus z2 करेंगे. Basically we will add both these imaginary numbers. So a plus iota b and then we add c plus iota d. अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रियल नंबर के साथ ऐड होंगे और इमेजिनरी नंबर्स के साथ ऐड हो जाएंगे. सो वी हैव a प्लस c दैट मेक्स अप आवर रियल नंबर्स प्लस आयोटा b प्लस d. ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया. सो z1 प्लस z2 इज a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d. अब जब हम इस पूरी चीज का कॉन्जुगेट लेंगे बेसिकली तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, a प्लस c alright minus iota b plus d. Please keep in mind this value here is basically the conjugate of z1 plus z2. alright, अब इसी चीज को हम सेपरेटली ले लेते हैं. जब सेपरेटली लेंगे so we have z1 conjugate which we basically said a minus iota b and z2 conjugate we basically said was c minus iota d. तो हमारे पास again we add real numbers to real numbers and imaginary numbers to imaginary numbers. तो हमारे पास आ जाएगा a plus c are real number and minus iota b plus d which is our imaginary part. So if we compare these two are exactly the same. So the sum of two imaginary numbers और उनका conjugate will be equal to the sum of two conjugates. Now let's look at the fifth proof. Basically इस proof में हम ये evaluate करेंगे that if we take two imaginary numbers और उनको हम आपस में करें divide और उस result का हम conjugate लें, that will be equal to the division of two conjugate numbers. And given that z2 basically जो denominator में imaginary number होगा that is not equal to 0. So let's get to the working. Let's say हमारे पास z1 is basically a plus iota b and z2 is c plus iota d. अब इनको हम करेंगे आपस में divide. So we have a plus iota b divided by c plus iota d. अब इसको फर्दर हम लोग मैनिपुलेट करने के लिए एक फॉर्म यूज करेंगे. बेसिकली वी विल रैशनलाइज इट और रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग डिनोमिनेटर को इवैल्यूएट करते हैं और पूरे फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर से उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं. बेसिकली व्हाट वी विल डू इज वी विल डू c माइनस आयोटा d डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d. इधर आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई होती है तो आप अपनी मर्जी से उसका बैलेंस आउट नहीं कर सकते. द मैक्सिमम थिंग यू कैन डू इज यू कैन ऐड और मल्टीप्लाई इट बाय न्यूट्रल नंबर. क्योंकि मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, न्यूट्रल नंबर विल बी 1 विच इज द आइडेंटिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं. द आइडिया इज मैं यहां पे किसी स्पेशल फॉर्म या किसी एक्स्ट्रा इक्वेशन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा. आई एम एक्चुअली multiplying this by a special or a different form of 1 which I can because it is a identity of multiplication. खैर, getting back to our solution. अब हम इसमें क्या करेंगे, we will multiply the numerator by the numerator and the denominator by the denominator. So हमारे पास क्या situation आ जाती है, AC then minus iota AD then plus iota BC and then minus iota square BD. अब देखिए यहां पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है that this iota square will convert into -1 और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे we will have plus BD. इसको हम करेंगे डिवाइड
और डिनोमिनेटर में हमने इस चीज का ख्याल रखना है दैट वी हैव c प्लस आयोटा डी एंड c माइनस आयोटा डी, विच बेसिकली मीन्स हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, वी हैव a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, जो कि एक सिंपल एल्जेब्राइक फंक्शन है, where a plus b into a minus b becomes a squared minus b squared. So हमारे पास इस सिचुएशन में क्या आएगा, c squared minus iota d whole squared. All right. अब we have a square plus bd plus iota bc minus ad, and then we divided by c square, क्योंकि यहां पे भी i स्क्वायर था, सो वी विल हैव प्लस डी स्क्वायर. अब हम सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए रियल पार्ट्स को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर देंगे. सो वी हैव ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड दैट इज द रियल पार्ट, एंड देन वी हैव द इमेजिनरी पार्ट विच इज आयोटा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया. तो इस वक्त हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज बेसिकली z1 ओवर z2, और सिचुएशन ये है कि हमने इस z1 ओवर z2 का कॉन्जुगेट जनरेट करना है. सो वी हैव ac प्लस bc ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस आयोटा bc माइनस ad ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. अब यही चीज हम सेपरेटली करेंगे. Basically, we will take the conjugate of z1, which is basically a minus iota b, and then divided by the conjugate of z2, which is basically c minus iota d. और सेम चीज हम इसके लिए करेंगे that we will use the rationalizing process. So हम लोग क्या करेंगे, c plus iota d divided by c plus iota d से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हमारे पास सिचुएशन आएगी ac प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, जो कि हमें लास्ट इक्वेशन से पता है टर्न्स इनटू +1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर c माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी आ जाएगा, जो हम यहां पे फिगर आउट कर चुके हैं, दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. सो व्हाट वी विल डू कि हम रियल पार्ट्स एक साइड पे लिखेंगे. सो वी विल हैव ए सी plus bd, and then we will have minus iota bc minus ad, and the whole thing can be divided by c square plus d square. So it's proved. Now we are going to do the sixth proof. Basically ये proof कहता है that if I multiply two imaginary numbers और उनका मैं magnitude generate करूं, that will be equal to the product of magnitudes of two imaginary numbers separately. So basically मैंने proof क्या करना है that if I take the magnitude of a plus iota b multiply by c plus iota d, तो वो equal होगा if I multiply the magnitude of a plus iota b with the magnitude of c plus iota d. So पहले हम एक एक्सप्रेशन के साथ डील कर लेते हैं. So सिचुएशन क्या है, we have AC plus iota AD plus iota BC, and then ये बात हमें पहले से पता है that I squared is -1, so we have minus BD. अब बेसिकली हम क्या करेंगे, we will sort the real terms together and the imaginary part together. So हमारे पास आ जाएगा AC minus BD as the real part and iota AD plus BC as the imaginary part. So basically अब हम real component और imaginary component का magnitude लेंगे. Magnitude लेने के लिए we will have this Z form. So the idea is that हम लोग पहला component लेंगे AC minus BD and square it, and the second component will be AD plus BC and we will square it. और इस पूरी situation को हम under root करेंगे, which basically means हम इसको to the power half रखेंगे. Now let's deal with this. We have AC whole square minus 2AC into BD, and then we have plus BD whole square. ये हमारे पास पहला कंपोनेंट आ गया, and the second component is AD whole square
प्लस 2AD इंटू BC प्लस BC होल स्क्वायर। अब सिचुएशन ये है दैट दीज टू वैल्यूज -2AC इंटू BD एंड प्लस 2AD इंटू BC, दीज बेसिकली गेट एलिमिनेटेड और हमारे पास फाइनल फॉर्म में आ जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर एंड दिस होल थिंग शुड बी अंडर रूट। सो द नेक्स्ट आइडिया इज कि जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे सो वी विल हैव A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय C स्क्वायर्ड प्लस D स्क्वायर्ड एंड दिस होल थिंग will also be under root, and the idea is this is basically the magnitude of the whole situation. Intuitively इस प्रूफ का हमें एक्चुअली पता उस वक्त लगता है जब हम इन लाइंस पे ये इवेल्युएट करते हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इमेजिनरी नंबर्स के इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड्स होते हैं। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 एंड दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। So finally we understand कि अगर हम इन दोनों इमेजिनरी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका मैग्नीट्यूड निकालें या दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर लें, we will have the same answer.